ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرب، پروفیسر وقار تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ سمیہ نے لائبریری میں آتے ہی میرب کو سر وقار کا میسج دیا تھا۔ لیکن ان کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس سیمسٹر میں تو ان کے ساتھ کوئی کلاس بھی نہیں، میرب نے آہستگی سے کہا تھا۔ یہ تو وہی جانتے ہیں، جاؤ جلدی سے جا کر ان کی بات سن لو، پھر ہمیں آڈیٹوریم کی طرف بھی جانا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا آج مجیب مرزا ایز اے چیف گیسٹ آ رہے ہیں۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان کو سامنے سے دیکھنے کے لیے۔ آج سے پہلے تو صرف ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی، میں تن من دھن سے اس پر فدا ہوں۔ تو جا کر جلدی سے سر کی بات سن، میں تب تک جا کر میک اپ ٹچ اپ کراؤں۔ میرب آہستہ آواز میں دل ہارنے والے انداز میں کہتی فوراً سے لائبریری سے بھاگی تھی۔ اس کے جانے سے ہی میرب نے اپنی کتابیں سمیٹ کر سر وقار کے آفس کا راستہ لیا تھا۔ دیکھو آنا، جس رشتے کی تم بات کر رہی ہو مجھے اس کے بارے میں بھنک بھی نہیں تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی آج کے دور میں کون بچپن کے نکاح کو مانتا ہے؟ نکاح لڑکا لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اور مجھے تو وہ وقت یاد بھی نہیں جب میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ میں نے جس طرح اپنے پارٹنر کو آئیڈیلائز کیا ہے تم اس ڈھانچے پر کہیں فٹ نہیں ہوتی۔ نکاح کے رشتے میں محبت کا ہونا لازم ہے، اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں، اور میں اپنی آخری سانس تک صرف اسی کو چاہتا رہوں گا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کو بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی اور اپنے گھر میں لاؤں گا۔ تو بہتر ہے ہم اس نام نہاد رشتے کو یہیں پر ختم کر دیں، جس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ وقار لاشاری نے روانگی سے لفظ ادا کرتے فون کے دوسری طرف موجود لڑکی کی سماعتوں پر بم پھوڑے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تو خود شوق میں آ گئی تھی جب کل سب کے سامنے ہمارے بچپن کے نکاح کی بات ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہترین دوست ہیں، اور میں ہمیشہ تمہاری اچھی دوست ہی بن کر رہنا چاہتی ہوں، آنا مرزا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے کہ جس سے بچپن سے خاموش محبت کی وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہے۔ وہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے کر بیٹھا ہے جس پر صرف اور صرف آنا کا حق تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم بھی اس نئے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گی، تو پھر ہم دونوں مل کر فیملی سے بات کر لیتے ہیں، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ میں آئی کم ان سر؟ سر وقار فون پر الوداعی کلمات کہتے ہی والے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اور نسوانی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جس آواز نے اس کی راتوں کی نیندیں چرائی ہوئی تھی۔ اس آواز نے وقاص کے کانوں میں ٹھنڈی پھوار جیسا کام کیا، اس لیے بغیر الوداعی کلمات کہے اور کال کاٹے اس نے میرب کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ دل میں بغیر کسی دستک کے آ گئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میرے آفس میں آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے؟ وقار نے منہ میں آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وعلیکم السلام، جی آپ بیٹھیے۔ سر آئی ایم فائن، کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ میرب نے روانگی سے انکار کرتے ان کے بلانے کی وجہ پوچھی تھی۔ وہ ایکچولی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مجھ سے؟ میرب نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرب، میں اپنی فیملی کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے آپ کو لے کر۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے اس دل نے آپ کو اپنا بنانے کی خواہش کی ہے۔ میں آپ کی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے عزت سے میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کو حق ہے انکار کرنے کا، لیکن میں تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک آپ کا انکار آپ کی رضامندی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر آ سکوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کا رشتہ بھیجنا میرے ہی رشتوں میں مجھے بدنام کر دے گا، اور سب میری پڑھائی بھی بند کروا دیں گے، جس کی اجازت مجھے بہت مشکل سے ملی ہے۔
मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। मैं इज्जत करती हूँ आपके जज्बे की, और जिस तरह आपने इज्जत के साथ निकाह की पेशकश की, आपकी इस बात ने आपके लिए मेरे दिल में इज्जत को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन मैं फिलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं। उम्मीद करती हूं आप समझ सकते होंगे। फिलहाल तो क्या, आप बाद में मुझसे शादी के लिए राजी होंगी? वकार ने फिलहाल पर जोर देते हुए कहा। सॉरी सर, मैं अपनी तरफ से आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। मुझे चलना चाहिए। हमारे ग्रुप को चीफ गेस्ट का वेलकम करना है। अल्लाह हाफिज कहती मीरब ऑफिस से बाहर चली गई थी। आप कुछ भी कह ले मीरब, मेरी बीवी के रुतबे पर आप ही फाइज होंगी। आप नहीं तो कोई भी नहीं। वकार के आखिरी लफ्ज ने फोन की दूसरी तरफ मौजूद वजूद का कांटों पर सुलगाया था। उसका दिल कर रहा था मीरब नामी लड़की का कत्ल अपने हाथों से कर दे, जो उन दोनों के बीच में आ गई थी। उसकी गाड़ी अभी यूनिवर्सिटी गेट के अंदर दाखिल हुई थी। उसकी गाड़ी के पीछे ही उसके गार्ड्स की गाड़ियों की कतार अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही पैसेंजर सीट से गार्ड ने निकलकर मुजीब मिर्जा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। वो अपनी रोबदार और पुरकशिश पर्सनैलिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसके रोब पर और पुरकशिश पर्सनैलिटी से मुतासिर नजर आ रहे थे। मुतासिर होते भी क्यों ना, वो एक कम उम्र 28 साल का लड़का सुप्रीम कोर्ट के जज के रुतबे पर फायज था, और आजकल जिस अमेंडेड को पास होने के चर्चे चल रहे थे, जिसमें उसने लड़कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम किया था, वो मुजीब मिर्ज़ा की बदौलत ही पास हुआ था। लड़कियां तो पहले से ही उसकी लुक्स पर फिदा थीं, लेकिन इस अमेंडेड के बाद उसके एक इशारे पर उसके लिए बिछने को तैयार थीं। मुजीब मिर्ज़ा लड़कियों के लिए एक आइडियल मैन था, जिसके ख्वाब हर लड़की देखती थी। वेलकम सर, आपका यहाँ आना हमारे लिए किसी सादत से कम नहीं। डीन ने मुजीब मिर्ज़ा के करीब आते उनका हाथ थामे खुशामदीद कहा था। उसके बाद मीरब ज़िया ने आकर वेलकम के तौर पर बुके पेश किया, जिसे उसने बगैर देखे रस्मी मुस्कुराहट के साथ रिसीव करते अपने असिस्टेंट को पकड़ाया था। मीरब भी उसे करीब से देखते मुस्मराइज हुई थी। वो खुद भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी, लेकिन सामने वाले शख्स को अल्लाह ने फुर्सत से बनाया था। मीरब ने खुद को कंपोज करते उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिया। क्या हुआ मोहतरमा, कहीं दिल तो नहीं हार गई? सबीहा ने उसके करीब आते टहूका मारते हुए कहा। ऐसी बात नहीं, मैं उनकी तरह एक काबिल जज बनना चाहती हूँ। बाकी तो वो सबके ही आइडियल हैं। ये कहते ही मीरब आगे बढ़ गई। आई विश तुम्हारी वो लालची पुप्पो तुम्हारे किसी ख्वाब के बीच में रुकावट ना बने। सबीहा ने सच्चे दिल से अपनी दोस्त के लिए दुआ की। इवेंट के ख़त्म होते ही मुजीब वकार के इसरार पर उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा था। वकार और मुजीब की दोस्ती बचपन से बहुत गहरी थी, और मुजीब को वकार अपनी लाडली इकलौती बहन आना के शौहर की हैसियत से बहुत अजीज था। वो बचपन से आना और वकार के निकाह के खिलाफ था, लेकिन बड़ों के कहने पर दोनों को नहीं बताया था। वो आना के दिल में वकार की मोहब्बत से वाकिफ था, और वकार के साथ मिलकर उसने लॉ की स्टडी की थी, इसलिए वो वाकिफ था कि वकार किस किरदार का मालिक है। और आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई, इसलिए वो मुतमईन था अपनी बहन और वकार के रिश्ते को लेकर। कैसा चल रहा है सब कुछ? ब्रो, जज बनते ही नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लिया है तूने? नहीं यार, ऐसी बात नहीं, तेरे लिए तो वक्त ही वक्त है। तू जान है अपनी। बस पिछले दिनों जो बिल इधर इधर घूम रहा था, उसने मुझे घन चक्कर बनाया हुआ था। शुक्र है अब पास हो गया है। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं, ये बोल के मजे ले रहा था लड़कियों में, पॉपुलर होकर, उनका क्रश बनकर। तू जल सकता है क्योंकि तुझे कोई लड़की भाव जो नहीं डालती। मुजीब ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक मारा तूने। देख कैसे मेरे 32 के 32 दांत बाहर आ गए हैं। हंस हंस कर वकार ने जलते हुए कहा था। उसे कुछ देर पहले मीरब का इनकार याद आया था।
इतना मत हंस, दांत सारे बाहर निकल आएंगे और मेरे बहन ने बूढ़े शौहर के साथ रुखसत होने से इनकार कर देना है। मुजीब ने मुस्कुराहट उछालते हुए कहा था, लेकिन दूसरी तरफ वकार के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो थी। मैंने तुझसे कुछ जरूरी बात। अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करता उससे पहले मुजीब के फोन ने रिंग किया। रात को बात करता हूं, कॉल पिक करना जरूरी है, वरना तेरी बेगम ने भारी पेनल्टी डाल देनी है अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंचा और उसको शॉपिंग के लिए ना लेकर गया। ये कहती है मुजीब ने कॉल पिक करते बाहर का रास्ता लिया। पीछे वकार सोच में पड़ गया था। उसने मुजीब के चेहरे पर जो खुशी देखी थी, इतने अरसे बाद वो खराब नहीं करना चाहता था। आ गई महारानी, आए आए, आपकी इन पढ़ाइयों से ही तो हमारे घर के खर्चे चलते हैं। अगर आप पढ़ेंगी नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मीरब अभी घर में दाखिल हुई थी जब आबदा बेगम ने उसे हमेशा की तरह लताड़ना शुरू कर दिया। अस्सलाम अलैकुम पुप्पो, मीरब ने झिझकते झिझकते कहा। क्या खाक सलामती होगी हम पर जब तक तुम हमारे सीने पर मूंग दलती रहोगी। पता नहीं क्या मनहूस घड़ी थी जो मैं तुम्हें अपने घर उठा कर ले आई, अपने मरहूम भाई की आखिरी निशानी समझकर। तुम तो यहां मेरी ही बेटियों की खुशियां निगलने लगी हुई हो। जरा भी गैरत नहीं आई सलमा के ससुराल वालों के सामने अदाएं दिखाते हुए। आबदा बेगम ने जारहाना अंदाज में उसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा। पुप्पो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मीरब ने आंसू बहाते हुए कहा। ओ बीबी, ये आंसू उनके सामने बहाना जो इनसे पिघलते हों। हमारे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं। अच्छे से जानती हूं तुम्हारी मां को कि वो किस तरह की औरत थी। आखिर बेटी हो उनकी तो उन्हीं पर जाओगी। सलमा ने जहर खन अंदाज में कहा। अम्मी, मैं कह रही हूं इसे दफा करें यहां से, वहां ही भेजें इसको जहां से इसकी मां का ताल्लुक था। कुछ पैसे ही आ जाएंगे, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने कोई गलत कदम उठा लिया। ये कहते ही सलमा पैर पटक कर वहां से चली गई। अब यहां खड़ी टसवे बहाती रहोगी कि किचन में जाकर कुछ काम भी करोगी? वैसे भी बोझ बनी हुई हो, कुछ हाथ पैर ही चला लो। आबदा बेगम हकारत से कहते अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे मीरब अपना बैग और किताबें टेबल पर रखती अबाया उतार कर किचन की तरफ बढ़ी, जहां उसके लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बच्चे, दरवाजा खोलो मेरी जान, रो क्यों रही हो? मेरा दिल घबरा रहा है, दरवाजा खोलो गुड़िया। मुजीब, जो फोन पर आना को रोता देखकर आधे घंटे का सफर 15 मिनट में तय करके आया था, यहां उसे खुद को रूम में लॉक किए देखकर उसे घबराहट ने आन घेरा। उसमें अब मजीद किसी अपने को खोने की सकत नहीं थी। ऊपर से सख्त दिखने वाला शख्स अपने रिश्तों के मामले में बहुत कमजोर था, और जब बात उसकी बहन की आती थी तो वो हर हद से गुजरने का जज्बा रखता था। भाई, मुजीब की आवाज सुनते ही आना दरवाजा खोलते उसके सीने से लगी। भाई की जान, ये क्या हाल किया हुआ है खुद का? कमरे की सारी चीजें टूटी बिखरी हुई थी। भाई, अना ने हिचकी लेते हुए कहा। क्या हो गया गुड़िया, किसी ने कुछ कहा है? भाई, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसके दिल में कोई और है। वो नहीं मानता इस निकाह को, वो इस निकाह को खत्म करना चाहता है। भाई, वो लड़की हमारे बीच में आ गई। हाँ, वो लड़की कॉलेज गर्ल है। वो वकार से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ पैसों की वजह से वकार की जिंदगी में आना चाहती है। भाई, वकार से तो मोहब्बत मैं करती हूं, कोई और कैसे कर सकता है? मैं हूं उसकी मनकूहा, उसके बारे में सोचने का हक तो सिर्फ मेरा है। वो नहीं मानता इस निकाह को, मैं तो मानती हूं। मैं तो उसे अपना सब कुछ मानती हूं। अपने महरम से मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन वो मेरी मोहब्बत को मेरे लिए गुनाह क्यों बना रहा है? वो क्यों मुझसे अलैदगी चाह रहा है? वो मेरा है, अगर उसने मुझे अपने नाम से अलैदा किया, मैं अपनी जान ले लूंगी। भाई, वो लड़की क्यों आ गई हमारे बीच में? कुछ करें ना, उसे मेरी और वकार की जिंदगी से निकालें। कुछ करें भाई। अना ने बेदर्दी से आंसू पोंछते हिचकियों के दरमियान बोलते आखिर में उम्मीद से कहा था। गुड़िया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वकार की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है।
अगर ऐसा होता तो वो मुझसे जरूर बात करता। है भाई, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। अगर ऐसा है तो उस लड़की को तुम्हारे और वकार के बीच में से हटना होगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे अलावा वकार की जिंदगी में कोई नहीं आएगा। आप सच कह रहे हैं भाई? बिल्कुल सच। मेरा बच्चा, अब जाओ फ्रेश होकर आओ। देखो इतने प्यारे फेस का रो रो कर क्या हाल कर लिया है। आई लव यू भाई। आई लव यू टू भाई की जान। सलीम, नजर रखो वकार पर, वो किस लड़की से मिल रहा है। आजकल ऐसा क्या देख रहे हो? सलीम को हैरानगी से अपनी तरफ देखते पाकर मुजीब ने पूछा था। सर, आप वकार सर की बात कर रहे हैं? तुम किसी और वकार को भी जानते हो? मुजीब ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। नहीं सर। तो फिलहाल उसी पर नजर रखो, और जिस लड़की से वो मिल रहा है मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। हाँ, उस लड़की का नाम मीरब है और उसकी स्टूडेंट भी। आगे की इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे ला कर देनी है। आना ने जितनी बात वकार और मीरब की फोन पर बात सुनी थी उसमें कुछ रद्दोबदल करके मुजीब को बता दी थी। ओके सर, ये कहते ही सलीम वहां से निकल गया। 4 दिन बाद। या अल्लाह ये सब खत्म कर दें, मैं थक चुकी हूं बार बार के तानों से। अगर मेरी माँ एक तवाइफ है तो इसमें मेरी क्या गलती? या अल्लाह तू तो बेहतर जानता है, वो जैसी भी है वो मेरी माँ है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। या तो मुझे मजीद सब्र दे दे या फिर ये ख़त्म कर दे। मीरब अब इशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और दुआ के लिए हाथ उठाए थे जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से आंसू पोंछते मुंह पर हाथ फेरते फ़ोन उठाया था जहां अननोन नंबर शो हो रहा था। हेलो। दूर रहो वकार से, दूसरी तरफ से पुरस्कार और बारोब आवाज सुनाई दी। जी, आप हैं कौन और होते कौन है मुझसे ये सब कहने वाले? जितना कहा है उतना करो और जल्द ही जान जाओगी मैं होता कौन हूं। ये कहते ही मुजीब ने फोन रख दिया। मीरब फोन हैरानगी से देख रही थी। आज आबदा बेगम के तानों ने पहले उसे मायूस किया हुआ था, ऊपर से पता नहीं ये कौन सी नई मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। एक तवाइफ की बेटी को मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी असलियत बताऊंगा, तुम्हारी असल जगह क्या है। मुजीब ने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते हुए अज़म किया था। उसे आज ही सलीम ने मीरब के बारे में एक डिटेल ला कर दी थी कि वो एक तवाइफ की बेटी है और मीरब की पैदाइश पर उसकी माँ ने अपनी बेटी को अपने बाप के घर भिजवा दिया था। लेकिन जिस दिन मीरब को उनके घर भिजवाया था उसी दिन एक एक्सीडेंट में मीरब के वालिद का इंतकाल हो गया और सब घर वालों ने उसे अपने घर रखने से इनकार कर दिया। फिर आबदा खातून रिश्ते में जो मीरब की पुप्पो लगती हैं वो वाकिफ थीं अपने भाई के तवाइफ के साथ निकाह वाली बात पर। उन्होंने अपने भाई की आखिरी निशानी समझकर या अपने भाई की नफरत की खंस निकालने के चक्कर में, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मीरब को अपने पास रख लिया। वैसे वो निहायत लालची किस्म की औरत है और मीरब से नफरत भी बहुत करती है क्योंकि उनकी माँ की वजह से ज़िया साहब यानी मीरब के वालिद ने आबदा बेगम की नंद के रिश्ते से इनकार किया था, जिसके बाद उनकी नंद ने उन्हें उनके ससुराल में चैन से जीने नहीं दिया। सलीम ने जब से मीरब का डाटा मुजीब को दिया था तब से मीरब के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे अना का कहा एक एक लफ्ज़ सच लग रहा था। उसे लग रहा था कि मीरब वाकई मटेरियलिस्टिक लड़की है जिसे मर्द का पैसा अट्रैक्ट करता है और वो ये चीज़ जल्द ही वकार के सामने साबित करने वाला था। मुजीब बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुजीब अभी तैयार होकर नीचे आया था। वो उबूरी दरवाज़ा पार करने वाला था जब परवीन बेगम ने उसकी जल्दबाजी पर उसे रोका। दादो, एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आप आना का ख्याल रखना। उसका ख्याल तो मैं रख लूँगी, तुम अपना ख्याल रखने के लिए कब किसी को लाओगे? मैं बूढ़ी जान कब तक तुम्हारे साथ रहूँगी? जल्दी से मुझे मेरी बहू ला कर दो ताकि मैं तुम्हारी तरफ से पुरसकून हो जाऊं। अब आना को भी हम जल्द रुखसत कर देंगे और मेरा पता नहीं कब तक तुम्हारे साथ हूं।
तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने जाकर शर्मिंदा हो जाऊं कि उनके इकलौते बेटे को अकेला दुनिया में छोड़ आई हूं? ये तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं दादी जान। मैं तो अपने पोते के सामने हक की बात कर रही हूं। आप भूल रही हैं मेरी प्यारी दादी जान, मैं बातों में उलझने वाला नहीं हूं। मैं एक काबिल जज हूं। मुझे दलीलें इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं करती। जज होगे तुम बाहर वालों के लिए, मेरे लिए तुम आज भी मेरे 5 साल वाले मुजीब हो, जो रात को डर के मारे मेरे पास आकर सो जाते थे। अब मैं निकलता हूं और आपकी ख्वाहिश पर जल्द ही नजरसानी करूंगा, मुजीब ने टालने वाले अंदाज में कहते जल्दबाजी में बाहर की तरफ कदम लिए थे। अरे रुको, नाश्ता तो करते जाओ, पीछे परवीन बेगम हमेशा की तरह कहती रह गई, लेकिन वो निकल गया था। कौन सा घर है उस लड़की का? गाड़ी के रुकते ही मुजीब ने सलीम से पूछा। सर, वो सामने ब्लू गेट वाला। ये कहते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सर, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा अंदर, और गार्ड्स को भी कहो गाड़ियों से निकलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सर, जितना कहा है उतना करो। ये कहते ही मुजीब मिर्ज़ा मास्क और हेड से चेहरा कवर करते अपने कदम गाड़ी से बाहर निकाले थे। कौन है भाई, दरवाज़ा तोड़ना है क्या? आबदा बेगम नखूद से कहते दरवाज़ा खोलने लगी। कौन हो भाई तुम? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब आप तो वो ही हैं ना जो आजकल खबरों में छाए हुए हैं, जज के रुतबे बरफाइज हैं। जैसे ही उसने चेहरे से मास्क हटाया था, आबदा बेगम नदीदों की तरह मुंह खोलते हुए कह रही थी, क्या अब मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, आए ना, आप यहां बैठे। आबदा बेगम ने खुशामद भरे अंदाज में कहा। मैं यहां बैठने नहीं आया, बल्कि आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूं, मुझे अपने एक ब्लैंक चेक आगे बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? आपके लिए और आपकी बेटियों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप जितनी चाहें इसमें रकम लिख सकती हैं, लेकिन उसको लेने के लिए आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। मुजीब ने शहादत वाली उंगली और अंगूठे के बीच में थोड़ा सा फासला बनाते कहा। कैसा काम? अपनी भतीजी मीरब को मेरे फार्म हाउस में भेजना होगा कुछ दिनों के लिए। मुजीब मिर्जा ने एक कमीनी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करने लगी? भतीजी है मेरी। सोच लें, आपकी मर्जी है। वैसे ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। वैसे अगर आप ये सब नहीं करेंगी तो मीरब को मैं अपने तक किसी न किसी तरीके से करीब ले आऊंगा, लेकिन मेरी बात ना मानने का नुकसान आप समेत आपकी बेटियों को उठाने पड़ सकते हैं। कैसे नुकसानात? मैं आपकी बेटी सलमा के ससुराल वालों को बता दूंगा कि आपकी भतीजी एक तवाइफ ज़ादी है। फिर तो आप अपनी बेटी के ससुराल वालों को जानती हैं, वो रिश्ता तोड़ देंगे। साथ ही वो आपको इस मोहल्ले में रहने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। चॉइस इज योर्स। हमें कबूल है, सलमा ने लालचीपन से चेक पकड़ते हुए कहा था। वो अपनी माँ और मुजीब के बीच होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी। समझदार है आपकी बेटी, लेकिन वो क्या है ना सिस्टर, ये चेक आपका तब होगा जब शाम 4 बजे से पहले मीरब मेरे फार्म हाउस में होगी। आप फिक्र ना करें, 4 बजे से पहले अम्मी मीरब को आपके फार्म हाउस छोड़ आएंगी। सलमा ने चेक पर नजरें गाड़ते हुए कहा था। मुजीब मिर्जा एक तनफ्फुर भरी निगाह उन दोनों माँ बेटी पर डालता वहां से निकलता चला गया। जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हमें कहीं जाना है। मीरब ने अभी घर में दाखिल होते सलाम ही किया था जब आबदा बेगम की हकमाना आवाज उसके कानों से टकराई। जी, मैं? मीरब ने हैरानगी से पूछा। तुम्हें अपने अलावा कोई और नजर आ रहा है यहां? अब मैं दीवारों से तो बात करने से रही, इसीलिए तुमसे ही कह रही हूं। हमने कहां जाना है? जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवालात करने की जरूरत नहीं। जी, मैं आती हूं 5 मिनट में, मुंह पर छींटा मारकर। उस अबाए में आई थी जो उसने पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद रिक्शा एक खूबसूरत से फार्म हाउस के सामने रुका। ये किसका घर है? मीरब ने हैरानगी से पूछा। मेरी दोस्त इधर काम करती है,
उसने कुछ सिलाई वाले कपड़े देने हैं, इसीलिए आई हूं। आप जाकर ले आए, मैं बाहर वेट कर लेती हूं। साथ चलो मेरे, अंदर जाकर तुम्हारी भी जबान नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन पुप्पो, मीरब अभी कुछ कहती उससे पहले ही आबदा बेगम उसका हाथ पकड़ते अंदर ले गई। ये लें, मैं अपनी जबान के मुताबिक 4 बजने से पहले इसे ले आई हूं। आप मुझे चेक दे दें ताकि मैं जाऊं। और हां, आप इसे जब भी छोड़ें, लेकिन अब ये हमारे पास नहीं आनी चाहिए। पुप्पो, ये आप क्या कह रही हैं? मीरब ने आंखों में बेयकीनी और आंसू लिए पूछा था। अब से मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, रखें इसे अपने पास, वैसे भी ये हम पर बोझ बनी हुई है, आबदा बेगम ने नखूद से कहा था। पुप्पो, आप कैसे कर सकती हैं? मैं आपके भाई की बेटी हूं, आपके घर की इज्जत, आप कैसे मुझे फरोख्त कर सकती हैं? मीरब ने बेयकीनी से रोते हुए कहा था। आप मजाक कर रही हैं ना? आप मुझे यहां छोड़कर नहीं जा सकती। टेबल पर पड़ा है आपका चेक, आप लेकर जा सकती हैं। अंधेरे में सोफे पर बैठा मुजीब कॉफी पीते ये ड्रामा एंजॉय कर रहा था। वो इस एंगल पर बैठकर ये सब देख रहा था कि मीरब की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। जब मीरब की हिचकियों से इरिटेट होते उसने आबदा बेगम को चेक लिखकर यहां से जाने का कहा था। नुसरत भी, इस लड़की को ऊपर मेरे कमरे में ले जाएं, मुजीब ने करख्त लहजे में मुलाजमा को हुक्म दिया। मैं नहीं जाऊंगी, हाथ छोड़े मेरा, प्लीज। पुप्पो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आबदा बेगम उसकी आवाजें अनसुनी करती उबूरी दरवाजा उबूर कर गई थी। प्लीज आंटी, मुझे जाने दे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। प्लीज आंटी, दरवाजा खोलें। आप खुद भी तो एक औरत हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? या अल्लाह, मेरी मदद कर। अल्लाह का नाम लेते ही वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने दर्द से आंखें मींच कर खोली जब उसकी नज़र बेड के ऊपर पोर्ट्रेट पर पड़ी। मुजीब मिर्ज़ा का पोर्ट्रेट देखकर उसके ऊपर ज़मीन और आसमान एक साथ गिरे। वो जिस शख्स को आइडियल मानती थी, जिसकी तरह वो इंसाफ पसंद बनना चाहती थी, वही शख्स उसका खरीदार था। दुनिया के सामने शरीफ बनने वाला और लड़कियों का आइडियल। हकीकत में ऐसा होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। बाहर सबके सामने वो लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाला, दर हकीकत खुद ही एक भेड़िया है जो लड़कियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता है। या अल्लाह, ये कैसे दोगले लोग हैं, मुझसे नहीं रहा जाएगा इनके बीच। या अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, इन लोगों के दरमियान। मीरब रोते रोते होशो हवास से बेगाना हो गई थी। उसको यहां आए 2 दिन हो गए थे। नुसरत बी के अलावा कमरे में कोई नहीं आया था। इस बात पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन होश में आने के बाद वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। नुसरत बी ने सुबह जबरदस्ती उसको नाश्ते के साथ नींद की गोली देकर थोड़ी देर के लिए सुलाया था। उठ गई, मिस तो मुझे बहुत किया होगा मीरब। जिसकी आंख अभी खुली थी उसको उठते देखकर सोफे पर बैठे मुजीब मिर्जा ने सिगरेट का गहरा कश लगाकर गंभीर आवाज में कहा। मीरब सोफे पर उसको बैठे देखकर खुद में सिमटी। उसकी इस हरकत पर मुजीब के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आकर मेरे करीब बैठो, मुजीब ने गंभीर आवाज में उसे बुलाया। मीरब ने उसकी बात पर नफरत से आंखें मींची, फिर निगाह उठाकर मुजीब मिर्जा को देखा जो पहले से उसे घूर रहा था। मीरब ने उसकी भारी और हुक्माना अंदाज पर मरियल कदम उठाती उसके सामने फर्श पर जाकर बैठी। सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें फर्श पर बैठने का नहीं कहा लड़की, मेरे पास आकर बैठो। मुजीब के कहने पर वो अपनी आंखें मींचती अपने मरने की दुआ करने लगी थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल रिवाइंड हो रहे थे जब उसकी पुप्पो 2 दिन पहले उसको मुजीब मिर्जा को फरोख्त करके गई थी और जब वो उसे वेलकम बुके दे रही थी। लड़कियां कैसे उसे आइडियलाइज कर रही थी, वो ये सब सोचते एक जगह फ्रीज हो गई थी। लगता है तुम बहरी हो गई हो। अचानक गुस्से से उठते मुजीब ने उसे बाजू से पकड़ते खींचा तो वो उसकी बाहों में झूलते जाकर उसके कुशादा सीने से टकराई।
ماننا پڑے گا میرب ضیا، خوبصورتی میں کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتی، لیکن وہ کیا ہے نا، جتنا تمہارا چہرہ خوبصورت ہے کردار تمہارا اتنا ہی بدصورت ہے۔ مجیب نے اس کے بال چہرے سے پیچھے کرتے کہا، جو مجیب کے کھنچنے پر اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے کردار کو جج کرنے والے؟ اصل منافق تو آپ ہیں، آپ کے دو چہرے لے کر گھوم رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ایک شریف اور باوقار شخص، اور اصلیت آپ کی یہ ہے دوسروں کی بیٹیوں پر غلیظ نظر کیسے رکھنی ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا۔ کردار میرا نہیں بلکہ آپ کا بدصورت ہے۔ اپنے کردار کے بارے میں بات سنتے میرب نے چیختے ہوئے کہا تھا، جسٹ شٹ اپ، تم ایک طوائف زادی مجھے کردار کے لیکچر دو گی؟ ایک ایسی لڑکی جو شادی شدہ مردوں پر ڈورے ڈالتی ہے۔ مجیب نے اس کے بالوں کو زور سے پکڑتے اشتعال میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرب نے درد سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، تم بدکردار ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹی اور فریبی بھی ہو، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تم جیسا بالکل نہیں ہوں۔ میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، لیکن میں تمہیں اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجبوراً ہی مجھے تم جیسے گندگی کے ڈھیر کو اپنا نام دینا پڑے گا، لیکن یہ بالکل مت سوچنا کہ میں تم پر فدا ہو کر تمہیں اپنے نکاح میں لے رہا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کے پر کاٹنے کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، تاکہ تم جیسی لڑکی کسی اور عزت دار لڑکی کا گھر برباد نہ کر سکے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جن لڑکیوں کی نگاہیں بے لگام ہوں، کسی غیر مرد کو استحقاق سے دیکھیں، وہ لڑکی کچھ بھی ہو سکتی ہے، باحیا نہیں۔ اب کہہ دو کہ ایونٹ والے دن تم مجھے تاڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھاڑ کر۔ مجیب کی بات پر ہچکیاں بھرتے میرب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو اس دن کی بے اختیاری پر اسے بے حیا کا ٹیگ تھما گیا تھا۔ وہ اس کا مینٹور تھا، وہ اس کو اتنے قریب سے دیکھتے مسمرائز ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بے حیا ہے اور ہر لڑکی کو ایسے دیکھتی ہے۔ نکاح خواہ آئے، شرافت سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لینا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کچھ خاص فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن میرا ایک مقام ہے اس دنیا میں جو میں تم جیسی لڑکی کی وجہ سے داغدار نہیں کر سکتا۔ نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، کیونکہ یہاں سے تمہیں میں جانے نہیں دوں گا، اور تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب تمہاری پپھو خود کہہ کے گئی ہیں کہ تمہیں کہیں اور بھیجوں، لیکن ان کے پاس نہ بھیجوں۔ اب تم سوچتے ہی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، چوائس از یورس۔ یہ کہتے ہی مجیب نے اسے جھٹکتا باہر چلا گیا۔ تھوڑا وقت لگا تھا ایجاب و قبول کے مراحل طے کرتی، وہ اپنا آپ ایک ایسے شخص کو سونپ چکی تھی جو اسے ایک بد کردار لڑکی سمجھتا تھا، جو اسے دوسری عورتوں کا گھر برباد کرنے والی لڑکی سمجھتا تھا، جس کی نظر میں وہ ایک طوائف زادی تھی۔ یہ سوچتے میرب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اللہ کرے تمہارا سارا غرور پاش پاش ہو جائے، تم ایسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ جو لا علاج ہو، تمہیں اس کا طبیب تا عمر نہ ملے۔ میرب نے روتے روتے مجیب کو بددعائیں دی تھی، جس نے اسے بار بار بد کردار بول کر اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجیب نکاح خواں کو اور گواہوں کو جو اس کے گارڈز تھے ان کو رخصت کرتے بغیر میرب سے ملے وہاں سے چلا گیا۔ بھائی آپ آ گئے؟ جی گڑیا میں آ گیا۔ بھائی وقار آئے ہیں؟ انا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جاؤ اندر، میں اس سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تو میری جان؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ وقار نے مجیب کے بغیر گیر ہوتے اس کو سلام کا جواب دیا۔ کیا ہوا، اتنا بجھا بجھا کیوں لگ رہا ہے؟ مجیب نے جانتے پوچھتے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے بھی نہیں بتائے گا۔ وہ 2 دن سے غائب ہے، اس نے کبھی چھٹی نہیں کی، فیور میں بھی نہیں۔ وہ ایک قابل اور ذہین اسٹوڈنٹ ہے جو برائٹ اسکالرشپ پر ہے۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میرے لیے اتنی خاص ہو گئی، لیکن بس ہو گئی۔
میں نے اس کی فرینڈ سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، لیکن اسے بھی نہیں پتا، اس لیے میں اس کے گھر گیا۔ پھر وقار نے ایک لمبی سانس کھینچی، جیسے آگے بولنے کے لیے ہمت چاہیے ہو۔ پھر اس کی پھپھو نے میری محبت کے بارے میں، میری زندگی کہنے پر مجیب نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جسے سننا میری پاک محبت کی توہین ہے۔ ایسا کیا کہا انہوں نے؟ مجیب نے انجان بنتے بولا تھا، حالانکہ یہ سب بولنے کے لیے اسی نے کہا تھا۔ وہ میری محبت کو طوائف زادی کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی امیر لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہی ہوں، وہ اس لڑکی کے ساتھ رہتے اسے تجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ایسی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ پاک دامن ہے۔ اگر وہ کسی طوائف کی بھی بیٹی ہے تو اس سے زیادہ معصوم اور پاک دامن میرے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نے حیا دیکھی ہے۔ جن لڑکیوں کی نگاہیں بے لگام ہو کر کسی غیر مرد کو استحقاق سے دیکھیں، وہ لڑکی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن باحیا نہیں۔ مجیب کو کچھ دیر پہلے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے تھے۔ تیری نظریں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں، میرب کے معاملے میں نہیں۔ کون میرب؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں نے نکاح کیا، اس کا نام بھی میرب ہے۔ تو نے نکاح؟ کس سے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وقار نے پہلے حیرانگی اور پھر خوشی سے کہا، تو نے کون سا اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا؟ اب بتا دیا نا، اور بہت جلد اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تو ناراض تو نہیں ہے کہ میرا نکاح آنا سے ہوا ہے اور میں کسی اور لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ آنا بھی یہ رشتہ نہیں چاہتی، میری اس سے بات ہوئی ہے اس بارے میں۔ نہیں، تیری زندگی ہے اور تجھے اپنی لائف پارٹنر منتخب کرنے کا پورا اختیار ہے۔ مجھے پتا تھا تو مجھے سمجھے گا۔ اب دکھا، بھابھی دکھنے میں کیسی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہی مجیب نے میرب کی پکچر اس کے سامنے کی تھی، جو سلیم نے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوئے اسے دی تھی۔ یہ پکچر دیکھتے ہی وقار کو اپنا آپ بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میرب ہے۔ وقار کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرب بھابھی، مجیب نے روب سے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ وہ بھی تجھ سے محبت کرتی ہے، دل و جان سے مرتی ہے مجھ پر، اسی لیے تو سب کی مرضی کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ مجیب کو وقار کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن یہاں بات اس کی جان سے پیاری بہن کی تھی اور وہ اس معاملے میں سیلفش ہو گیا تھا۔ اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ یہ کہتے ہی وقار نے اپنی آنکھوں میں آئی دھندلاہٹ کو پلکیں جھپکا کر پیچھے کرتے باہر کی طرف قدم لیے۔ جب اسے سائڈ ٹیبل سے ٹھوکر لگی تھی، آنا نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ اتنی جلد بازی میں کہاں جا رہے ہو؟ مجیب نے فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ رات کو ڈنر پر آنا، میں اپنی بیوی کو فیملی والوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ مجیب نے اسے تھوڑا کمپوز ہوتے دیکھ کر کہا۔ موم ڈیڈ کو بھیج دوں گا، شاید میں نہ آ سکوں۔ وقار نے کس دل سے کہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیسٹ فرینڈ میرے اس خاص موقع پر میرے ساتھ رہے۔ تمہاری فیملی آنا اور دادی جان کے علاوہ ہے ہی کون؟ میں کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہی وقار نے اپنے قدم باہر کی طرف لیے۔ سنبھال لینا اسے گڑیا، میں نے اس کا دل توڑ کر دوستی جیسے رشتے کو بے مول کیا ہے۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ جلد اپنے اس فیز سے باہر نکلے۔ یہ کہتے ہی مجیب مرزا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی بی جی، یہ صاحب نے آپ کے لیے کپڑے اور کچھ سامان بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ کس لیے؟ نصرت کی بات پر میرب اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا اور ہماری اتنی ہمت نہیں کہ ان سے سوال کر سکیں۔ بہتر ہے کہ آپ ان کی بات مان کر جلدی سے تیار ہو جائیں۔
ورنہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی غصہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ مجیب سیٹی کی دھن بجاتے ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا جب میرب کو اداسی سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا پایا۔ وہ خوبصورتی کا مجسمہ بنی آئینے کے سامنے کھڑی مجیب مرزا کو مسمرائز کر گئی تھی۔ مجیب نے اپنے قدم آہستی سے کھوئے انداز میں اس کی طرف اٹھائے۔ جب اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے میرب کی محویت ٹوٹی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹی جب مجیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن یہ خوبصورتی کمرے کی حد تک رہے۔ اپنی پہلی بات پر میرب کے حیران تاثرات نوٹس کر کے اس نے فوراً سے بات بدلی تھی، پر اپنی بے اختیاری پر لعنت بھیجی تھی۔ تیار ہو تو چلیں، وہ میں نے عبایا پہننا ہے۔ ابھی تو عبایا نہیں چادر بھجوائی تھی، ان سے خود کو کور کر لو، میں تمہارے لیے عبایا منگوا دوں گا، اور ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں زیادہ زبان مت کھولنا۔ یہ کہتے ہی اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری بہو تو بہت پیاری ہے، ویسے میں اس نالائق سے سخت خفا تھی جب شام کو اس نے اپنے خفیہ نکاح کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے اتنی پیاری اور معصوم بہو لا کر دی ہے کہ میری ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی۔ پروین بیگم نے میرب کو اپنے حصار میں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی اتنی اپنائیت اور محبت پر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بات بری لگ گئی میری؟ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ میں نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ پولائٹ نہیں دیکھا، اس لیے۔ اب تم مرزا خاندان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہو، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تم سے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ لو، آنا کے سسرال والے بھی آ گئے۔ ماشاءاللہ، بہو تو مجیب چن کر لایا ہے، بالکل اپنے مقابلے کی۔ سب سے ملنے کے بعد شرمین بیگم نے میرب کو گلے لگاتے کہا تھا، اب آپ لوگ اپنے گھر میں تو رونق لے آئے ہیں، اب ہمارے بھی گھر کی رونق لے کر جانے دیں۔ آپ کی امانت ہے، اب جب چاہیں لے جا سکتی ہیں۔ کوئی مناسب سی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں رخصتی کی۔ شرمین بیگم کی بات پر پروین بیگم نے حامی بھری تھی۔ آپ پہلے ایک بار وقار سے پوچھ لیں، مجیب نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقار جو ابھی داخل ہوا تھا اس نے آتے ساتھ ہی فیصلے کے لیے حامی بھری تھی۔ وقار کی آواز پر میرب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شکموں کا ڈھیر دیکھ کر میرب نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ یہ تم دونوں کے لیے ویڈنگ گفٹ۔ اب تم لوگوں نے مجھے اپنے نکاح میں تو بلایا نہیں، لیکن میں دوست ہونے کا فرض کیسے بھول سکتا ہوں، جسے میرب نے تھامنے سے پہلے مجیب نے تھام کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک ہفتے بعد آنا اور وقار کی رخصتی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آنا کے سسرال والے چلے گئے تھے۔ پروین بیگم نے ملازمہ کو کہہ کر میرب کو وقار کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ برا لگ رہا ہوگا، ایک عاشق ہاتھ سے نکل گیا۔ مجیب نے کمرے میں آتے ہی طنز کا تیر پھینکا۔ کیا ہوا؟ میری بتائی ہوئی سچی بات برے طریقے سے چپ گئی ہے؟ میرب کو بغیر کسی جواب کے وہاں سے جاتے دیکھ کر مجیب نے کہا، جن باتوں کا مطلب نہیں ہے میں ان باتوں کو آپ کو جواب نہیں دینا چاہتی۔ جب آپ نے مجھے بد کردار مان لیا ہے تو مانتے رہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی غائبی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی سوچ بدل سکوں، اس لیے آپ کو آپ کی سوچ مبارک ہو۔ میرب نے بغیر اسے دیکھے کہا۔ آنا اور وقار کی شادی کو 4 مہینے ہو گئے تھے۔ جہاں وقار کے رویے میں آنا کے لیے بدلاؤ آیا تھا، وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا، وہاں میرب اور مجیب کے بیچ سرد سی جنگ قائم تھی۔ اب تو دونوں نے بات کرنا مکمل چھوڑ دیا تھا۔ دادی کبھی کبھی میرب کو زبردستی مجیب کے کاموں میں انوالو کرتی تھی، جو وہ اور مجیب دکھاوے کے لیے ان کے سامنے کر لیتے تھے۔ آج صبح سے ہی مجیب کی طبیعت خراب تھی، لیکن ایک اہم کیس کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے کورٹ جانا پڑا۔ اس نے جس پارٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، مخالف پارٹی نے طیش میں آ کر مجیب پر حملہ کروایا تھا۔
जिसमें उसकी बचत हो गई थी। लेकिन सारे काम निपटाते निपटाते रात के 12:30 बज गए। सुप्रीम कोर्ट के जज मुजीब मिर्जा पर कातिलाना हमले की खबरें पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गईं, लेकिन अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसने वो खबर तमाम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दी थी। अब उसे यही फिक्र थी कि घर में किसी ने ये खबर ना सुनी हो। वो अभी घर में दाखिल हुआ था कि उसका सर दर्द से चकरा रहा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा देखकर उसने शुक्र अदा किया, क्योंकि घर में अंधेरा होना इस बात का सबूत था कि दादी को हमले की खबर नहीं मिली। वो भी कमरे में दाखिल हुआ था जब मीरब फौरन से आकर उसके कुशादा सीने से लगी। आप ठीक है ना? आपको पता है वो खबर सुनकर मैं कितना डर गई थी। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुजीब ने उसके गिर्द हिसार कायम करते हुए कहा था। आप क्यों करते हैं इतने खतरनाक काम? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, दादी का क्या होता? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आप निहायत ही सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। आप किसी दूसरे के सुने बगैर उस पर टैग लगाकर अपनी मर्जी थोप देते हैं। आप क्यों करेंगे मेरी फिक्र? मैं आपकी नज़र में बदकिरदार। मुझे ये अल्फाज तुम्हारे लिए तुम्हारे मुंह से बिल्कुल कबूल नहीं। तुम मुजीब मिर्जा की बीवी हो और मुजीब मिर्जा की बीवी का एक रुतबा है। मेरी नज़र में काबिल एहतराम हो। मैं नहीं जानता कि कैसे तुम्हारे खिलाफ इतने घटिया अल्फाज बोल गया। मैं आज तक अपने एक एक लफ्ज़ के लिए शर्मिंदा हूं, जिससे मैंने तुम्हारी आबरू और सेल्फ स्टीम को हिट किया। जो भी था, मुझे तुम्हें वो अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे पता है कि तुम अल्फाजों के लिए मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी। मैं खुद भी उन अल्फाज के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। जो भी था, मुझे एक औरत की इस्मत का ख्याल रखना चाहिए था, और ख़ास तौर पर तब तो मुझे और ख्याल रखना चाहिए था जब औरत तुम जैसी पाक दामन और बाहया हो। तुम जब मुझसे नज़रें फेर लेती हो तो दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। मुझे वो पल याद आता है जब तुम मुझे पहली दफ़ा देखते मुस्मराइज हो गई थी। उस दिन से पहले किसी भी लड़की की महवियत ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत से मुझे देखना दिल में हलचल मचा गया था। तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें देखा था और जी भर कर देखा था। वो क्या है ना, जज हूं, हर नजरिए से देखने की सलाहियत रखता हूं। बात करते करते मुजीब हल्का सा मुस्कुराया था। वकार तुम्हें पसंद करता था, उसने तुम्हें प्रपोज किया, ये बात मैं जानता था, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था कि तुमने उसे रिजेक्ट किया है। ऊपर से आना का कहना था तुम पैसे की वजह से वकार के साथ हो, और फिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब वो मेरा तवाइफ की बेटी होना। आपकी नज़र में मेरा इमेज और बिगाड़ गया। आपको लगा मैं एक तवाइफ की बेटी हूं। मैं पैसे वाले लड़कों से दोस्तियां करती हूं, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रगों में तवाइफ का खून दौड़ता है। असर तो करेगा ना। और तवाइफी तो वैसे भी बदनाम है। शरीफ और पाक दामन औरतों का घर खराब करने के लिए मीरब ने मुजीब को आखिर में हिचकिचाते देखकर उसकी बात मुकम्मल की थी। मुझे पूरी बात पता नहीं थी। अगर आपको अब भी पता ना चलती तो आप अब भी अपनी गलती तस्लीम ना करते। मीरब ने उसके हिसार से निकलते कहा। मुझे आना ने मिसगाइड किया था। उसने कहा था तुम वकार के साथ रिलेशन में हो, और जब वकार ने तुम्हें अपने निकाह के बारे में बताया तब भी तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तुम उससे मेरी बहन को छोड़ने के लिए फोर्स कर रही हो। मुजीब ने शर्मिंदा होते अपनी सफाई दी थी। और अब आपको मेरी असलियत कैसे पता लगी? वो आना माँ बनने वाली है। वो अपने हर उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती है जिसका असर उसके बच्चे के फ्यूचर पर पड़े। वो बद्दुआओं से डरती है कि कहीं कोई उसकी औलाद को बद्दुआ ना दे दे। वाओ, क्या कहने आप बहन भाइयों के। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उसके बच्चे को कोई बद्दुआ ना दे दे तो उसने आपको सच बता दिया, और फिर आपको मेरे साथ अच्छा बनना याद आ गया, मुझ जैसी गिरी हुई किरदार की लड़की के सामने।
میں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کے لیے۔ آپ کی شرمندگی آپ کو مبارک ہو۔ بہت لیٹ ہو گیا ہے، سونا چاہیے۔ کہتے ہی میرب اپنا پلو اور بلینکٹ اٹھاتی ہمیشہ کی طرح صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ نہیں، مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے۔ یہ کہتے ہی بغیر مجیب کو دیکھے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیچھے مجیب فریش ہو کر بغیر کچھ کھائے بخار کی ٹیبلٹ لیے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجیب کو بے آرامی سے بار بار کروٹ لیتے دیکھ کر میرب نے اٹھ کر اس کے قریب جاتے جھجکتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو گرم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا، اور وہ بار بار 2 انگلیوں سے اپنے سر کو بھی مسل رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے روم سے باہر نکلی اور کچھ دیر بعد کمرے میں ٹرے ہاتھ میں لیے داخل ہوئی جس میں دودھ کے گلاس کے ساتھ بریڈ اور بوائل ایگ پڑے تھے۔ سنیے، اٹھ کر یہ کھا لیں، میرب نے آہستگی سے کہا۔ بہت لیٹ ہو گیا ہے، سونا چاہیے تمہیں۔ مجیب نے کچھ دیر پہلے والے الفاظ یاد کرتے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھتے کہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ اس وقت ضد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے معاملے میں آج کل ہوتا جا رہا ہوں، خدا گواہ ہے تم سے ملنے سے پہلے نہیں تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اب؟ تمہارا تھوڑا سا وقت، ہمیشہ سے خود کو کمپوز رکھنے والا، بیماری کے عالم میں اپنا حال دل کھولتا میرب کے لیے مشکلات کھڑی کرتا جا رہا تھا۔ اٹھیں، تھوڑا سا کھا لیں۔ میرب نے اس کی بات کو اگنور کرتے دوبارہ سے پہلے والا ٹاپک سٹارٹ کیا۔ تم پاس بیٹھ جاؤ، میں کھا لیتا ہوں۔ اس کے چہرے کی بیزار تاثرات دیکھ کر اس نے کھانے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجیب نے اٹھ کر ایک بریڈ کے پیس کے ساتھ تھوڑا سا دودھ پی کر ٹرے سائڈ پر کر دی۔ مجیب کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی ہے۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے میرب سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر میرب نے فکر مند ہو کر اس کے گلے لگنے سے اس میں حوصلہ بڑھا تھا۔ ویسے میں تمہارے لیے سچ میں بہت معنی رکھتا ہوں۔ مجیب چاہتا تھا وہ اس سے باتیں کرے، اسی لیے بات کو بڑھاوا دینے کے لیے اس نے کچھ دیر پہلے کا حوالہ دیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا اور تم میرے سینے سے لگی تھی، وہ اس وقت مجھے صرف دادی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کتنی اچھی اور آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھالتی۔ میں صرف دادی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میرب نے اس کی بات پر دہکتے گالوں سے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا، آپ کو ان کی فکر تھی۔ کیا آپ میرا سر دبا سکتی ہیں؟ میڈیسن لی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا۔ جی، تھینک یو کہتے ہی اس نے اپنا سر جلدی سے اس کی گود میں رکھا تھا۔ میرب نے مجیب کو سکون سے آنکھیں مونتے دیکھ کر اپنے باقی الفاظ اپنے منہ میں جذب کر لیے۔ بے اختیاری میں اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ بھی اس کی انگلیوں کے لمس سے سکون حاصل کرتا جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ دن تیز رفتاری سے گزرتے جا رہے تھے۔ مجیب کو جہاں لگ رہا تھا کہ اس رات کے بعد وہ سب صحیح کر لے گا، میرب کو منا لے گا، لیکن میرب نے مکمل طور پر اسے بے رخی اختیار کر لی۔ میرب بچہ اور مجیب کہیں گھوم کیوں نہیں آتے؟ کتنے ماہ ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو، لیکن مجال ہے تم جو میری پیاری سی بہو کو گھمانے لے کر گئے ہو۔ میں تو لے کر جانا چاہتا ہوں دادی جان، لیکن میری پیاری بیوی نہیں مانتی۔ مجیب نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ یہ بات صبح اس نے ہی دادی کے کانوں میں ڈالی تھی کہ وہ میرب کو کہیں اس کے ساتھ جانے کا، ورنہ وہ اس کے ساتھ کبھی جانے کے لیے نہیں مانے گی۔ کیوں بیٹا، آپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ دادی نے میرب سے پوچھا تھا۔ دادی میں گھر میں ٹھیک ہوں، میرب نے رسانیت سے انکار کیا۔ تم دونوں کو کہیں گھومنے جانا چاہیے، دونوں ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ایک دوسرے کو جانو گے تو تم دونوں کے رشتے میں بہتری آئے گی۔ میں جانتی ہوں جس طرح اس نے تم سے نکاح کیا ہے وہ غلط ہے، وہ مجھے ساری بات بتا چکا ہے۔ میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہی، وہ غلط ہے اور یہ بات میں جانتی ہوں، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔
अगर आप ये बात जानती हैं तो क्यों चाहती हैं कि हमारे रिश्ते में बेहतरी आए, जबकि मैं उनके साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। और मोहब्बत उन्हें होती है जो कि नामुमकिनात में से एक है, एक संदिल शख्स के लिए। और अगर उनको मोहब्बत हो भी गई है तो ये मेरा सर दर्द नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं। ये कहते ही मीरब वहां से उठकर चली गई। और ये पहली दफा हुआ था कि मुजीब मिर्जा को किसी लड़की ने ठुकराया। लड़कियां उसे देखकर ठंडी आहें भरती थीं और उसकी बीवी उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर गई थी। उसके गरूर में दरार पड़ी थी कि कोई लड़की उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, और आज उसकी बीवी उसका गरूर तोड़ गई थी, वो भी बगैर देर लगाए। टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद, बहुत बुरा लगता हूं तुम्हें मैं। मीरब, जो अलमारी में अपने कपड़े सेट कर रही थी, मुजीब की अचानक बेतुकी बात पर ठुटकी थी। फिर बगैर जवाब दिए कपड़े हैंग करने लगी। तुम्हें पता है मीरब, मुझे लगता था मुझे कोई लड़की अपना असीर नहीं कर सकती, मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। सिर्फ तुम्हारी झलक देखने के लिए मैंने छोटे छोटे काम अपने ऑफिस में करने वाला बंदा था। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैं बड़े काम भी घर में करने लगा। तुम्हारा मुझे ना देखना मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। मेरी मोहब्बत इतनी भी तासीर नहीं रखती कि तुम पर असर अंदाज हो सके। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं कि मेरी बीवी मुझे देखना पसंद नहीं करती? मुझे गरूर रहता था अपनी खूबसूरती पर, अपनी वजाहत पर। वो पाश पाश हो गया है। तुम्हारा नजरअंदाज करना कसम से जानलेवा है, मुजीब ने हारे हुए अंदाज में कहा था। कुछ कहोगी नहीं? उसे अपनी बातों में चुप साधे देकर उसे बोलने के लिए उकसाया। बता दें अब क्या बोलना चाहिए मुझे, वही बोल देती हूं, मीरब ने तल्खी से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूं, कुछ भी बोल दो, चाहे दिल की भड़ास निकाल दो। मैं अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहती। कर लो एक बार, कसम खाता हूं तुम्हें ताउम्र अपने अल्फाज पर पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर पहली बात से शुरुआत करते हैं। आपने मुझसे पूछा आप मुझे बुरे लगते हैं। बुरे का पता नहीं, लेकिन मुजीब, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। आप खुद बताएं, मुझे एक ऐसा शख्स कैसे अच्छा लग सकता है जिसकी नज़र में मेरी कोई इज्जत ना हो? मैं बदकिरदार हूं, जिसकी नज़र में मैं दूसरों के शौहरों पर डोरे डालने वाली लड़की हूं, और मेरे ना देखने से आपको खुद से नफरत महसूस होती है। यही कहा ना आपने, तो बताएं कैसे देखूं? वैसे जैसे पहली दफा देखा था और बेहयाई का ताना सुना था? सॉरी टू से, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे पहले ही मेरी नज़रों की बेख्तियारी मेरी नज़र में गिरा चुकी है, और आप अच्छे दिखते हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके अल्फाज, आपके एक्शन आपको करीब से जानने वालों के सामने आपको बदसूरत बना देते हैं। आपके अमाल के सामने आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है मिस्टर मुजीब मिर्ज़ा। अब आपका कोई अमल, कोई भी एफर्ट मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। तो बेहतर है ना आप मुझसे बात करने की इल्तिजा ना करें और ना मेरी नज़रों में मज़ीद गिरें। ये कहते ही मीरब कमरे से वॉकआउट कर गई थी। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो? मीरब, जो इतना कुछ सुना आई थी, अब किचन में अपने अल्फाज याद करके रो रही थी जब परवीन बेगम यहां आई थी। ऐसे ही दादो, वो आंखों में कुछ चला गया था। तुम अगर मुझे अपना मानती हो तो मुझसे सारी बातें डिस्कस कर सकती हो बच्चा। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ दादी? वो क्यों अपनी इल्तिजाएं लेकर हर दूसरे दिन मेरे सामने आ जाते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें यूं बार बार ठुकराना। तो अपना लो उसे, परवीन बेगम ने रसानियत से कहा। कैसे एक ऐसे शख्स को अपना लूं जिसने मुझे खरीदा हो मेरे घर वालों से? कैसे एक ऐसे शख्स को अपना लूं जिसने मेरी इज्जत नफ्स को रौंद दिया हो? तो ऐसे शख्स को अपना लो जिसे तुमने तुम्हारे लालची रिश्तेदारों से बचाया हो, जिसने तुम्हें एक बीवी की बद्दुआएं लेने से बचाया हो। मतलब मैं समझी नहीं।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पुप्पो सारी जिंदगी तुम्हें अपने पास बिठा कर रखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुजीब को नहीं तो किसी और को बेच देती तुम्हें, और क्या पता वो शख्स तुमसे निकाह करता या नहीं। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर तुम वकार के लिए हां कर देती तो एक टूटे हुए दिल की ताउम्र उसकी सिसकियां तुम्हारा पीछा करती। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी रखी हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही अपने पोते को चुनने के लिए, बस तुम्हें कहानी का दूसरा पहलू बता रही हूं। आगे अब तुम्हारा फैसला है, मुझे तुम्हारे हर फैसले में तुम अपने साथ पाओगी। ये कहते ही दादी वहां से उठकर चली गई। ये तुम्हारे लिए, मुजीब ने कमरे में दाखिल होते खाकी लिफाफा मीरब के आगे बढ़ाते कहा। उस खाकी लिफाफे को देखकर मीरब को धड़का लगा था। क्या वो उसे तलाक दे रहा है? क्या वो उसे अपनी जिंदगी से निकालने वाला था? क्या ये सब उसकी सुबह की कही गई बातों का असर है? ये क्या है? मीरब ने मनफी सोचों को झटकते अटकते अटकते सवाल किया। आप मुझे तलाक दे रहे हैं? मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं? मतलब आपकी मोहब्बत भी एक नाटक थी? मीरब ने तंजियां हंसी लबों पर सजाते कहा। और मुझे देखिए, मैं कितनी बड़ी पागल हूं जो इस रिश्ते को एक और मौका देने वाली थी। देखे ना, कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं जो आपके साथ एक हंसी खुशी लाइफ जीने के सपने बुनने लगी थी। आपने आज साबित कर दिया कि आप इस काबिल ही नहीं कि आपको माफ किया जाए। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे भी आप कोई खास पसंद नहीं है कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं मर जाऊंगी। ला देंगे पेपर्स। क्या वाकई तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? मुजीब ने हैरानगी और खुशनुमा तासुर देते कहा। अब आप इस खुशी का मकसद, जब आप मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं? मीरब ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूं? पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा करूंगा। तो फिर ये किस चीज के पेपर्स हैं? मीरब ने अपनी जल्दबाजी की वजह से शर्मिंदा होते आहिस्तगी से कहा था। ये घर खरीदा है तुम्हारे नाम पर, उसके पेपर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी वो काम करो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। मुझे लगा था तुम इतनी नफरत के बावजूद भी इसीलिए यहां रह रही हो कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कहां जाओगी। इसीलिए घर तुम्हारे लिए खरीदा ताकि तुम कभी मजबूर ना हो, अपने दिल को मार कर एक ऐसे शख्स के साथ ना रहो जिसे तुम नफरत करती हो। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूं? मोहब्बत भी तो नहीं करती, नफरत भी नहीं करती मुजीब। तो अब क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बदलने लगा है? मुजीब ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। बदलने लगा नहीं, बदल गया है। मैं ये नहीं पूछूंगा कब कैसे हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में आई किसी मौजे से कम नहीं हो। मुजीब ने उसके हाथ पकड़ते अकीदत से कहा था। और रही बात तलाक की, तो मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होना चाहता। तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम मुकाम रखती हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत कम रिश्ते हैं जिनमें सबसे अव्वल नंबर पर तुम आती हो, और तुम मेरी जिंदगी की अव्वलीन चाहत हो। चंदा, तुमसे दस्तबरदार हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। मुजीब मिर्जा के पास। जब मैंने अपने अम्मी अब्बू को खोया था तो दिल में अज़म किया था, अल्लाह ने जो रिश्ते मेरी जिंदगी में रखे हैं उनके अलावा कोई और रिश्ता नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनों को खोने से डर लगता है। लेकिन तुमने मुझसे मेरा किया हुआ अज़म तोड़ दिया। तुम कब खास हुई पता नहीं लगा। मुजीब मिर्जा दिलो जान से फिदा है तुम पर। कुछ कहोगी नहीं? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोलूं। आप इतना बोलते हैं कि सारी बातें भूल गई जो मुझे कहनी थी। दादो तो कह रही थी आप कम गो हैं। मीरब नाक चढ़ाते बोलने लगी। मैं वाकई कम गो हूं, लेकिन दूसरों के लिए। तुम्हें देखकर मुझे सारी बातें याद आ जाती हैं। तुमसे बात करना अच्छा लगता है चंदा। ऐसे क्या देख रही हो? क्या अभी लड़कियां आपके साथ सेल्फीज लेती हैं? क्यों, तुम जेलिस हो रही हो? जेलिस होती है मेरी ज्योति। आप सवाल का रुख फेर रहे हैं जज साहब। मीरब ने गुस्से से नाक फुलाते कहा।
आई लाइक योर दिस साइड। बाय द वे, तुमसे शादी होते ही मैंने अपना मेंटल स्टेटस मैरिट कर दिया था अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसीलिए अब आधी दुनिया जानती है कि बंदा बुक्ड है, यहां उनका कोई चांस नहीं बन सकता। गुड, होना भी नहीं चाहिए कोई चांस। मीरब ने उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था। गुंजाइश ही नहीं है। मुजीब ने वही उंगली थामते उसे खुद के करीब किया और अकीदत से माथे पर लब रखे थे। मीरब की इजाजत लेते उसे मोहब्बत से अपने हिसार में कैद किया। आजमाइशों के बाद अल्लाह ने उसकी शरीके हयात के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी थी। मुजीब ने अपनी मोहब्बत, अपनी शरीके हयात को, उसकी रजामंदी और पुरानी रंजिशों को भुलाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था, जहां आगे उनके लिए खुशियां उनकी मुंतजिर थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें